Good morning, dear students. Today in this video, we will discuss chapter number 11 from our EVS books, and the name of the chapter is Our Safety. So let's start with the fun time. Join the dots to complete the picture and then color it. So here a picture is given. You have to join the dots like this and then you have to color it with red, yellow and green color. So let's start. Now complete the following lines. Hi, I am a traffic light. So now it is a traffic light. So dash light says stop. Okay, out of which light says stop? Red light. So what is color here? Red. So fill it with E. R-E-D, red. Red light says stop. So now what's color it is? It is yellow color. Yellow light says wait. So what is spelling of yellow? Y-E-L-L-O-W. Yellow light says wait. Dash light says go. What's color it is? It is green color. So write here green. G-R-E-E-N, green light says go. So it is a picture of a traffic light, okay, which have different color, which have red color, yellow color and green color. So red color says stop, yellow color or yellow light says wait, and green light says go. We should follow some rules for our safety. They are called safety rules. So here question is, what are safety rules? Okay, there are some rules for our safety. That rules are called safety rules. So बच्चों यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो हम सभी को फॉलो करने पड़ते हैं ताकि जिसको फॉलो करके हम सब सेफ रहें. उन रूल्स को हम क्या बोलेंगे? सेफ्टी रूल्स. क्योंकि वो रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए हैं, इसलिए उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी रूल्स. So, the safety rules help us to avoid accidents. We can get hurt if we do not follow them. So, जो safety rules हैं वो हमें एक्सीडेंट से बचाते हैं, और अगर हम उन safety rules को follow नहीं करेंगे तो हमें चोट लग सकती है. There are many safety rules that children must follow. So, यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं ताकि हम उनको फॉलो करके सेफ रह सकें, जिनको बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए. सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. अब हम यहाँ पे उन सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें रोड पे फॉलो करने चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. सो to remain safe, you have to keep in this mind that you should always walk on the footpath. आपको सेफ रहने के लिए हमेशा किस पे वॉक करना चाहिए, किस पे चलना चाहिए? जब आप रोड पे हो तो आपको फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. सो दिस इज फुटपाथ. Always cross the road with an elder person. Okay, when you have to cross the road, take help from an elder person. जब भी आपने कभी रोड को क्रॉस करना हो, उसकी एक साइड से दूसरी साइड पे जाना हो, तो आपको किसी बड़े की हेल्प लेनी चाहिए. चाहे वो आपके मम्मा पापा हों, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, कोई भी अंकल हो या कोई भी आंट हो, तो आपको उसकी हेल्प के साथ ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. जब भी आपने रोड को क्रॉस करना है तो आपने कहाँ से क्रॉस करना है? जेब्रा क्रॉसिंग से. ओके, यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. सो दीज ब्लैक एंड वाइट लाइन्स आर जेब्रा क्रॉसिंग. ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. आपको हमेशा ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. आपको कभी भी रोड पे खेलना नहीं चाहिए. सो these are the some safety rules which should be followed, okay, to remain safe. What are the safety rules? Always walk on the footpath. Always cross the road with an elder person. Use the zebra crossing to cross the road. Always follow the traffic rules and do not play on the road.
So here are some safety rules at home. Okay, safety rules at home. Now we will read about the rules which we should follow at home to remain safe. Never play with sharp things like knives, scissors and pointer things. आपको कभी भी शार्प थिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहिए. कैसे शार्प थिंग्स? नाइफ्स के साथ, सीजर के साथ और पॉइंटेड थिंग्स के साथ, मीन्स नेल्स के साथ. डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग पॉइंट्स, यू माइट गेट ए शॉक. आपको कभी भी इलेक्ट्रिक वायर के साथ या फिर प्लग के साथ भी खेलना नहीं चाहिए. क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि आपको, अगर आप खेलोगे तो आपको शॉक लग सकता है. डू नॉट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर, कीप देम इन देयर राइट प्लेसेस व्हेन नॉट इन यूज़. आपको अपने टॉयज़ को कभी भी फ्लोर के ऊपर पड़े नहीं रहने देना चाहिए. आपको उन अपने टॉयज़ को खेलने के बाद उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. ओके, सो दीज आर द सम सेफ्टी रूल्स विच यू शुड फॉलो एट होम. नेवर प्ले विथ शार्प थिंग्स लाइक नाइफ एंड सीजर. डू नॉट प्ले विद electric wires and plug points, and do not leave your toys on the floor. You should keep them in their right place. So next is, do you know, for an emergency some medicines are kept in a box at home. This box is called first aid box. सो बच्चों, आपके घर पे भी एक बॉक्स होगा जिसमें मम्मा ने मेडिसिन रखी होंगी, बैंडेज रखी होगी, डिटॉल रखी होगी. ठीक है, उस बॉक्स में हमने कुछ ऐसी मेडिसिन रखी होंगी जो हम एमरजेंसी में यूज़ करेंगे. अगर कभी हमें कट लग जाए या कुछ हो जाए तो मम्मा जल्दी से वो बॉक्स लेके आती हैं. उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स. दैट बॉक्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड बॉक्स. Now next is activity time. Tina loves to play with things around her. Circle the things which are not safe to play with. So the girl which is here, her name is Tina, and Tina loves to play with different things, but you have to help her to tell the things which are not safe for her. सो इस गर्ल का क्या नेम है? टीना. टीना को काफ़ी सारी डिफरेंट थिंग्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, लेकिन आपने यहाँ पे उन थिंग्स को सर्कल करना है जिनके साथ खेलना सेफ नहीं है और जिनके साथ खेलने से उसको चोट लग सकती है. सो लेट्स स्टार्ट. वी शुड नॉट प्ले विद द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट. सो वी शुड नॉट प्ले, वी कांट प्ले विद द सीजर, नेल्स, पिन्स, ब्लेड, knife, nail cutter. Okay, we can't play with these things because these are pointed things and it can or it may hurt us or it may hurt Tina. So here is a rock. So again Tina has to avoid this thing. Okay, so Tina can play with only these two things, but one is doll and other is teddy bear. Okay, so next topic is safety rules while playing. So here are some safety rules which we should follow while playing. अब यहाँ पे हम उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें कब फॉलो करने चाहिए? जब हम खेलेंगे. ओके, while playing, which rule should be followed while, these rules should be followed while playing. So always play in the park or playground. आपको हमेशा कहाँ पे खेलना चाहिए? आपको हमेशा पार्क या फिर प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए. वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड्स. और जब भी कभी आप स्विंग्स और स्लाइड्स का यूज़ कर रहे हो तो आपको आपकी टर्न का वेट करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम. आपको हमेशा ही गेम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए. डू नॉट हिट और पुश अदर्स व्हेन यू प्ले. जब आप कभी खेल रहे हो तो आपको कभी भी अपने फ्रेंड्स को कभी भी हिट नहीं करना चाहिए और ना ही कभी उन्हें धक्का देना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी बुशेस. आपको कभी भी
झाड़ियों के पास नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो आपको हर्ट कर सकती हैं, आपको चोट पहुंचा सकती हैं। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स इन द पार्क। आपको पार्क में अजनबियों के साथ, उन लोगों के साथ जिनको आप जानते नहीं हो, उनके साथ बातें नहीं करनी चाहिए, उनसे कुछ भी लेके नहीं खाना चाहिए। So here are some more things. One is go green. Be careful while playing in the park. Do not step on the baby plants or flowers. और जब भी कभी आप पार्क में खेलो तो आपको ध्यान से खेलना चाहिए कि आप कभी भी किसी बेबी प्लांट को या फिर फ्लावर को हर्ट ना करो, कभी भी अपना पैर उसके ऊपर मत रखो। Next is being wise. If your friend gets hurt, do not panic. Wash the wound with clean water and immediately inform your elders. आप अच्छे बच्चे कैसे बन सकते हो कि अगर खेलते समय आपके फ्रेंड को चोट लग गई है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके वाउंड को वॉश करना चाहिए, ठीक है। उसकी चोट को वॉश करके, वॉश किसके साथ करना चाहिए, क्लीन वाटर के साथ वॉश करके जल्दी से किसी बड़े को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज गुड और बैड टच। ओके, सम टचेस आर फ्रेंडली, वी फील नाइस अबाउट देम, दे आर कॉल्ड गुड टच। ओके, व्हेन मम्मी टचेस यू इट इज़ ए गुड टच। बच्चा, अभी टच क्या होता है, जब भी कोई आपको छूता है, जब भी कोई आपके 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 ऊपर कोई भी हाथ रखता है, उसको क्या बोलेंगे, टच करना, ठीक है। टच भी टू टाइप्स के होते हैं, एक है गुड टच और एक है बैड टच। आपको पता है गुड क्या होगा, जो अच्छा होगा दैट इज़ गुड टच, और जो बुरा है उसको क्या बोलेंगे, बैड टच। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टच गुड है और कौन सा टच बैड है, आपको ऐसे पता चलेगा कि जब कोई आपको टच करेगा, अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो उसको हम, उस टच को हम क्या बोलेंगे, गुड टच। और गुड टच कैसा होता है, जैसे आपकी मम्मा आपको टच करती हैं, वो दैट टच इज़ गुड टच। उसके जैसे टच को हम क्या बोलेंगे, गुड टच। और इफ़ समवन एल्स टचेस यू एंड मेक यू फील बैड, इट इज़ कॉल्ड बैड टच। लेकिन अगर कोई आपके आसपास में से कोई बड़ा आपको टच कर रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, उस टच को हम क्या बोलेंगे, बैड टच। ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स अबाउट इट। और अगर कोई आपके आसपास में से आपको कोई बैड टच कर रहा है और उसके टच करने से आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको जल्दी से अपने मम्मा पापा को इन्फॉर्म करना चाहिए। और अगर कोई स्कूल में आपको बैड टच कर रहा है तो उसके बारे में आपको अपने टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच। गुड टच आर दोज विच मेक यू फील गुड। वो टच जो आपको अच्छा फील कराए, उस टच को हम क्या बोलेंगे, गुड टच। और जिस टच से आपको अच्छा फील ना हो, जिस टच से आपको बुरा फील हो, उस टच को हम क्या बोलेंगे, बैड टच। और आपको बैड टच के बारे में अपने मम्मा पापा को और अपने टीचर्स को जल्दी से इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, एंड नाउ वी क्विकली रिवाइज द कंटेंट वंस मोर। वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल। हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। नेवर प्ले विद शार्प थिंग्स। हमें कभी भी शार्प थिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहिए। शार्प थिंग्स आर लाइक नाइव्स, सीजर्स। ओके, ऑलवेज प्ले इन द पार्क और प्ले ग्राउंड। आपको हमेशा पार्क या फिर प्ले ग्राउंड में ही खेलना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। डू नॉट हिट और पुश अदर्स। आपको हमेशा ही गेम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए और कभी भी खेलते समय अपने फ्रेंड्स को हिट नहीं करना चाहिए या फिर उन्हें कभी भी पुश नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग पॉइंट्स। आपको कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ, प्लग पॉइंट के साथ खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप खेलोगे तो आपको शॉक लगने के भी चांसेस हैं। ऑलवेज यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। और अगर कभी आपने रोड को क्रॉस करना है तो आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग को ही यूज़ करना चाहिए। So here is back exercise of chapter.
First part is tick the correct option. Always play dash in the playground or on the road. Correct answer is in the playground. We should not play with toys or scissors. Scissors. We should not play with scissors because it can hurt us. We should always cross the road using the dash. We should always cross the road using zebra crossing. So next part is tick the pictures in which children are following the safety rules. Cross the picture in which children are not following the safety rules. So here are 3 pictures. यहाँ पे हमें 3 पिक्चर्स दी हुई हैं. हमने उस पिक्चर के नीचे टिक करना जहाँ पे बच्चे सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और उस पिक्चर के नीचे क्रॉस करना है जहाँ पे बच्चे सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे. So here this boy is playing with the scissor. So scissor is a sharp object. So we have to put here cross. So ये बच्चा scissor के साथ खेल रहा है. So it means ये safety rule को follow नहीं कर रहा. So here he is also playing with the electric plug. So again he is not following the safety rules. That's why we will put a cross here. So here she is placing her toys at their right position. So she is following the safety rules. That's why we will tick here. Next is read the clues given below and complete the words. Black and white lines on road. Okay, these are black and white lines on the road are called zebra crossing. So sharp things in the kitchen, this is knife. It help us to light fire. What is this? This is matchbox. So here is part D. Give answer in 1 or 2 words. Where should we walk on the road? हमें कहाँ पे चलना चाहिए रोड पे? On the footpath. Where should we play with our friends? In the park or in the playground. So आप इन दोनों में से एक लिख सकते हो. In the park या फिर in the playground. So here are the question answers of chapter number 11. Why should not we play with electric wires? हमें इलेक्ट्रिक वायर के साथ क्यों नहीं खेलना चाहिए? We might get a shock. अगर हम खेलेंगे तो हमें शॉक लग सकता है. Write one safety rule you follow while playing. आपने वो रूल लिखना है जो आप खेलते समय फॉलो करते हो. I always play in the playground. Okay, and you can also write I always play in the park. बच्चा आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो. I always play in the playground या फिर I always play in the park. Okay, with this we have completed the chapter. If you have any query you can ask. Thank you.